خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام. پھر سے زوردار تالیاں زندہ کرنا. واقعی کلام پورا کہا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہوتا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے درمیان کرتے ہوئے کہا وہ سب کچھ پورا. اس میں نہ کوئی کمی ہوئی نہ کوئی گھاٹا ہوا، بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 18 آیت دیکھیں کہ یہ کب کہا گیا اور کب پورا. کیا ہے؟ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. آگے کیا ہے؟ میں تمہارے پاس آؤں گا. میں تمہارے پاس آؤں گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا خاص خداوند کا شکر. یہ جب سے سال شروع ہوا تھا، بلکہ سال کا اینڈ کیا، جس وقت سے خداوند یسوع مسیح کی ہم نے کرسمس کی عید منائی. پھر اس کے بعد ہم آگے جو پاک جمعے پر پھر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائی، اور چند دن پہلے ہم نے عید پنتیکوست، روح کا نزول، جب روح کی برکت جب لی، ہم نے جوش جذبے سے ابھی بھی وہی قوت، وہی طاقت، وہی جذبہ، وہی طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں جو خدا ہمیں سکھا سکتا. یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. دنیاوی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. دنیاوی اس لیے ہے ہم میں سے اکثر بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے خام دو بندے ہوتے ان کو کہتے ہیں میرا تو ماں پیو مر گیا، میں یتیم ہوں، تو اس مرے میرے تے ظلم کر. اکثر یہ ڈائلیکٹ میں نے سنے ہیں بہت سی فیملیوں میں. اکثر ہم نے بچوں کے منہ سے یہ ڈائلیکٹ سنے ہیں. ہاں جی میں ستیلا ہاں، تسی میرے پرائے ماں پیو ہو، میں یتیم جو ہاں تے مینوں تسی کپڑے بھی نہیں لے کے دیندے، جُتی بھی نہیں لے کے دیندے. دنیاوی چیزاں. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو وعدہ کرتا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ جو دے سکتا ہے. اس دن بھی میں نے یہی سکھایا تھوڑا سا، اور پاسٹر صاحب نے بھی اسی کو آگے لے کر چلے. جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے، اور وہ ہمارا پیارا خداوند یسوع مسیح وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تھا، اور اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کیا پاور ہے اور میں کیا دے سکتا ہوں. جب اس کے پاس جو پاور ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. وہ وعدہ پورا کرتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قیامت المسیح یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو ہم مناتے ہیں، اس میں وہ پھر بھی یہی وعدے کو یاد رکھتا ہے. اس سے پہلے اس نے بڑے دعوے کیے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے. اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ دوسرا مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا. اس لیے یہاں پر کہتا ہے کہ دوسرا مددگار حاصل کرنے کے لیے مجھے جانا ہے. میں یتیم تو نہیں چھوڑ رہا، میں لوارث نہیں چھوڑ رہا، میں بے سہارا نہیں چھوڑ رہا، میں کسی کے ہاتھوں میں نہیں آپ کو ڈال رہا، بلکہ میں اپنے وعدے کے مطابق ہو بہو اپنے جیسا جو مجھ سے نکلے گا وہ تمہیں پتا. ہاللیلویا. اس سے کیا نکلتا ہے؟ پاک. اس لیے تو وہ وعدہ کرتا ہے. اعمال کی کتاب میں ہم آ جائیں گے. اعمال پہلے باب کی اس دن میں نے تلاوت بھی کروائی تھی اس کی.
तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर क्या किया, जिंदा जाहिर किया। हाँ जी, यतीमियत खत्म, बेपरवाही खत्म, लवारसपन खत्म, हर तरह की जो हमें अंदर से घुटन थी वो खत्म होता है। खौफ जब आता है तो आप खुदा को याद करते हैं, जब खौफ नहीं आता तो कोई भी खुदा को याद नहीं कर सकता। खौफ ही खुदा के नजदीक हमें लेकर आता है और खौफ के वसीला से हम खुदा की बरकत हासिल करते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि वो जिंदा है तो हमें खौफ नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या कहता है, चुनाचा वो क्या है, 40 दिन तक, कितने दिनों तक, 40 दिन तक उन्हें क्या हुआ, नजर आता। अच्छा, अब वो यहाँ पर खुदावंद बताता है कि मैं जिंदा हुआ, किसी यतीम नहीं, लवारस नहीं, बेसहारा नहीं, मैं सुनने वाला हूँ, तकवीत देता है, बरकत देता है, आपको सबूत देता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है और आपको पावरफुल बनाना चाहता है। ये जो पावरफुल का लफ्ज है ना, ये जो वादा किया गया है, आजकल हम दुनियावी है, दुनियावी लोग दोगले लोग, ये लफ्ज कुछ अच्छा नहीं है, तो वो दोगले इसको कह सकता हूँ, या मुझे इसके हाँ दो दिले कह सकते हैं, या तेरे मुंह ते तेरा ते ओदे मुंह ते ओदा। ते पिछला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਸੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ये है दोगलापन, ये है तरफदारी। लेकिन यीशु मसीह तरफदारी नहीं चाहता, दोगलापन नहीं चाहता, यतीम नहीं छोड़ता, बेसहारा नहीं छोड़ता और आपसे किनारा भी नहीं करता। वो कहता है जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मेरे बाप का, मेरा भी नहीं। जो मैं तो चलो तो आपके सामने आया, आपकी सूरत में आया, आपकी शक्ल में आया, मेरे ऊपर ना यकीन करो, जिसने मुझे भेजा है वो रूह है। हमें इसका सबूत कहां पर, स्टार्टिंग में मिल जाता है, पैदाइश की किताब में मिल जाता है। पहली 3 आयतों में हम पढ़े ना, खुदावंद की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी, वो उस वक्त भी आपको लवारस नहीं छोड़ रहा, यतीम नहीं छोड़ रहा, और अब भी वो आपको लवारस यतीम नहीं छोड़। ये जो आ जाती है ना आगे वाली बात, 40 दिन तक नजर आया और खुदा की बादशाही की क्या कर रहा था, बातें कहता रहा। ये जब वो आपके साथ रहकर दोगलेपन की बात नहीं की, तरफदारी की गल्ला नहीं की, खुदा की बादशाही की बातें कहता है। जैसे हमने कहा, ऐ हमारे बाप तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर। हम कहते हैं नहीं, आसमान वाली मर्जी तेरी तो जमीन वाली मर्जी हाडी, कि नहीं, यही है, ये दोगलेपन है, ये अपना आप मनाना है, ये अपने आप पर चलना है। लेकिन प्यारे उदो ही बनाएंगे जब उदे दुनियावी ना बने। दुनियावी जो लोग है ना, आगे नसरीन ने भी वहां से तिलावत कराई थी, यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के खत में जो दुनियादारी वाले हैं, यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब 15 आयत 16 और 17, ये दुनियादारी वाली बातें लिखी हुई हैं। जरा पढ़े भाई। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना क्या करो, दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। आगे, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। बाप की मोहब्बत नहीं। गल पूरी हो रही है कि नहीं मेरी, हो जड़ी कही गई। हम दुनिया से मोहब्बत रखने वाले क्या है, दुनिया की है, उसमें बाप की मोहब्बत हासिल करना बड़ा औखा जी, सौखा नहीं। आज तक काम थोड़ा कौड़ा होएगा,
लगेगा, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। जैसे वो यीशु कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आज का कलाम आपके लिए फायदेमंद होगा। जो समझ जाएंगे वो तब जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो दोगले ही रहेंगे। ओदे मुंह ते ओदे ते ओदे मुंह ते ओदे, पिछले नु भूल जाओ, यीशु नु भूल जाओ। वो क्या कहता है, ना पलूस है ना पलूस, ना कैफा का हूं, ना मैंने कैफा यानी पतरस, और पलूस जो लास्ट में खुदा का चुना हुआ शिगिर्द कहेगा, ना वो उसका रहा, ना वो उसका शिगिर्द जो था उसका। क्योंकि हमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया, कोई बता सकता? बाप खुदा बेटे खुदा पाक के नाम से। हालेलुया। 3 से बाप बेटे पाक रूह से हम उसी की प्रस्तिश करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी के साथ चलते हैं। और जो इन बातों को समझता है उसके अंदर समझो पाक रूह है। आज मैं आपको सबूत दूंगा इसका, पाक रूह है। आज ये पाक रूह का काम और पाक रूह की बरकत आप देखेंगे। इसलिए तो खुदा कहता है हमें सारे काम दिन ही दिन में करने हैं। वो रात आने वाली है जब कोई भी शख्स काम नहीं कर सकता। उस वक्त शैतान काम करता है ना। रात में कोई शख्स काम नहीं करता, उस वक्त कौन करता है? शैतान, अबलीस, जो झूठों का बाप है। कलाम उसके बारे में कहता है वो झूठा नहीं बल्कि झूठों का बाप है, और जो उसमें चलते हैं वो समझो शैतान के पैरोकार है। यीशु आपसे प्यार करता है। आगे 16वीं आयत में पढ़े। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, क्या है? पहले नंबर पर जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आमीन। ये देखिए 3 बातें बड़ी वाज़िया बयान कर दी है। जिस्म की ख्वाहिश, आंख की ख्वाहिश। आंखें जो आपको दी हुई है, आपको पता कि आंखें किसकी निकाली गई थी? समूह की। हालेलुया। पास सबके लिए तो समसून की आंखें क्यों निकाली गई थी? आपको पता क्यों? कोई बता सकता है? ये निकाली तो गई है, क्यों निकाली गई? वो जिस लड़की को देखता था ना उससे उसका प्यार हो जाता, उससे मोहब्बत करता था, दुनिया से मोहब्बत नहीं। वो जिस लड़की से देखता, जब उसको सजा मिली, जब उसको लड़की नहीं बचाया, उस लड़की को प्यार करता है, और लड़की के वसीला से ही, औरत के वसीला से ही उसकी आंखें निकाली जाती हैं पहले ही, और उसकी आंखें निकालकर उसको चक्की पर डाल दिया जाता है। कैदखाने में चक्की पीसने पर लग जाता है। फर्स्ट गुनाह वो नजीर था खुदा का, उसके बारे में कहा गया था ये मेरी तरफ से भेजा गया है, पाकरू के वसीला से भेजा गया है। पाकरू उस पे काम करेगा, पाकरू उसकी हिदायत करेगा, और ना उसके सर पर कभी भी जब से वो पैदा होगा उस तरह ना लगाना। हालेलुया। इसलिए उसकी जो शेखी देखी ना, इसको निकाल दिया गया, और फिर जब उसकी आंखें निकाल दी गई तो फिर भी, और सर जो उसके बालों में ताकत की उड़वा दिया गया। तो जब उसके बाल थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए ना, उसकी उम्मीद बहाल होनी शुरू। चक्की अभी पीस रहा था, अभी उसकी आंखें तो चली गई हैं, लेकिन उसका जहन खुल गया। हमारा भी जब कुछ खो जाए ना, कहते अखा नहीं थे जहां नहीं, जहां मतलब दुनिया नहीं। अगर आंखें हैं तो सब कुछ है, और उसकी अभी आंखें चली गई तो उसका जहां का सोचना बाकी रह गया। खुदावन तू मैनू कदी फिर वही मेरे वालों तू बढ़ाने लग पिया, फिर वही ताकत दे रहे जेड़ा मैं शेर की हड्डी नाल किले मारे हम 1000 उसने एक गधे की हड्डी से, जबड़े से हड्डी पड़ी। हड्डी कह सकते हैं कि जबड़े कह सकते हैं, हड्डी कह सकते हैं, जबड़ा भी कह सकते हैं। हाँ जी, चलो जो भी आप जिस तरीके से समझ सकते हैं समझे। वो एक हड्डी छोटी सी उससे हजारों गिरा देता है, अगर लाखों भी होते तो गिरा देता, क्योंकि उसके साथ खुदा का पाप मौजूद था।
काम कर रहा है ना। पाक रूह उस वक्त से भी काम करता था, पाक रूह उस वक्त भी काम करता था जब यूसुफ कैद में था। जब यूसुफ कैद में था उस वक्त भी पाक रूह काम कर रहा था। यहां पर वादा यतीमी का छोड़ा गया, परेशानी खत्म की गई। यहां पर खुदा इसलिए आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। हम दो दिले हैं, हम बेवफा हैं, हम यीशु नहीं हो। जुल्म सितम, कोड़े, कांटों का ताज, लहू लहान, कांधे पर भारी सलीब और चल पड़ा यरूशलेम की तरफ। वह कलवरी पर मसलूब कर दिया गया, क्योंकि वो मोहब्बत करता था दुनियावी नहीं रूहानी। इसलिए तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ पूरा करता हूं। मैं बाप को देखता था ये काम करते हुए और मैं वो आगे कर रहा। यूसुफ पर कैसे पाप ये नाज़िल हुआ? जब वो कैद खाने में था और दो जो बादशाह के लेफ्ट राइट वाले थे उनको ख्वाब आया अलग अलग, और यूसुफ ने उनकी उस ख्वाब की तकलीफ कर दी। और फिर जब बादशाह को ख्वाब आया और उन्हीं ने बोलो एक की जान चली गई और जो बच गया था वो अब भूल गया था। उसने जब उसको याद किया कि वो यूसुफ ने क्या ही, तू अपना मुनसब हाथ रखेगा, तू अपने पौधे पे कायम होएगा, काम करेगा, बादशाह दे उससे हिस्से दे, तू उन पक्षियां दी वाह ठंडियां ठंडियां तो भूल जाता। जो हमें मिल जाता ना कुछ, हम अक्सर भूले होते हैं। ये है दो दिला, हमें मिला हुआ है ना सब कुछ, हम भूले हुए हैं हर एक चीज। जब अभी फिर वो ही एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, कौन सी वाली? अक्सर मैंने ये सुनाई थी, अक्सर मैं ये सुनाता हूँ और बताता भी हूँ। शायद भाई यूसुफ मरकज साहब को याद है ये मिसाल, उन्होंने एक दफा मेरे से बयान भी की थी। टावर वाली, मजदूर थे मिस्त्री वाली, मजदूर थे मिस्त्री वाली, टावर ये फैसले है टावर पे मैं काम करना दूरी मैं मिसाल और वो बन गया, कंप्लीट हो गया, मेरी आंखों के सामने बना है, कंप्लीट भी मेरी आंखों के सामने हुआ, उसकी मेंटेनेंस भी मेरी आंखों के सामने अभी भी हो रही है, उस वक्त भी हो रही थी। और बनने के बाद 5-6 साल वो खुला नहीं, उसकी थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस होती है। और जब खोलना था वो एक ही दफा, ये बड़े लोगों का काम है, एक दफा ओपनिंग करते और अच्छी करते हैं। और एक मिस्त्री और एक मजदूर, दुनिया उधर घूमते फिरने आती रहती है, कब खुलेगा कब। पर मैं भी वो जो ऊपर बाल बनाऊंगा ना, जिस ग्लोब जिसको हम कहते हैं, मैं कहता था इस वक्त मैं ग्लोब जगह करूंगा। तो खुदा ने मुझे वहां पर भी काम करने के लिए जगह, मैंने उधर भी काम किया। और खुदा का शुक्र है कि वो हमारे साथ रहता है। हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमारे साथ रहता है। और जब एक मिस्त्री एक मजदूर काम थोड़ा थोड़ा, ये काम दिहाड़ी दुनिया करती है, जो लम्हे हैं वो भी बताना है। और जब मिस्त्री पे चला जाता है टाइम बचाने से, अब ये इसको रूहानी भी हम कर सकते हैं। अब तो हमारा जो ब्रेड हमारा बनाने वाला यीशु मसीह वो ऊपर चला गया है, अब हम मजदूर उसके नीचे हैं। एक मजदूर जो है ना, बाकी सारे बिजी हैं, एक मजदूर वो अपने ना रखता है, बाकी सारे बिजी हैं, उन्होंने वादा देता है वो भी नहीं सुनता। मजदूर मिस्त्री वादा दे रहा नहीं सुनता, मेंटेनेंस का काम चलता है, क्या यार लै की पत्थर ले लाना तो, लेकिन जो नहीं सुनता तो क्या करता है वो एक रियाल फेंकता है, रियाल फेंकता ना ऊपर से, वो साइडों में देखता है मजदूर, साइडे घूम कर देखता है, कोई नहीं रहता थे की करता है रियाल के उत्ते पैर रख लेता, कोई और ना देखे। जब वो साइडियां से घूम कर देख रहा था रियाल वो पैर के थले ही है। अब उसकी हिकमत जलाई, वो बैठ कर वो रियाल को उठा रियाल उठा लेता है, थानू तो चाहिए रियाल ही रियाल मिल गया तो खराज जेब से आ गया, टाइम उठा ही है।
जैसे जैसे हमें रियाल मिलते रहेंगे ना, हम खुदा को भूलेंगे। यहाँ पर पाक रूह जब आपको मिलेगा ना, आप रियालों को भूलेंगे और खुदा के साथ मिलेंगे। यहाँ पर जब तक वो रियाल मिलते रहे भूला रहा। अब कहता है यार एंड्रू मैं रियाल सुन रहा रियाद है तो याद है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या करूंगा, एक पत्थर मार। वो एक पत्थर लेके ना सीधा उसके सर के ऊपर, गंजा मेरे उत्ते मुंह में निकल पड़ा, सीधा कहा सर के ऊपर। मैं उन साइडा से नहीं देखा, मैंने कहा देखा उथों ही आया है, उधर से आया है। अब मुझे दरमियानी को देख, साढ़े खत्म, दोगलापन खत्म। अब जब मुझे पत्थर लग गया तो मैं अब प्योर तरीके के साथ खालस हर चीज छोड़ दी है। पत्थर लगने से पहले आप यीशु से मिला, वो आपको यतीम नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपके से मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको दुनियादारी से निकालना चाहता है। तो करें सब आंखों की शेखी, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। आमीन। बात पूरी हुई है ना, मेरी मर्जी पे नहीं चलना। तेरे मुंह ते मैं इश्तियाक यार तेरा ही आ, तेनों मैं इन्ना प्यार करना वे हर जुमे याद कर। नहीं पास्टर जान है कहना, इरफान साहब है कहना, भाई असलम है मैं होता हूँ, ये चीजें अच्छी नहीं। ये क्या है, एनू तुसी ना दो, ये चीजें क्या है, दोगलपन, डबल पॉलिसी है। इसको क्या कहते हैं, डबल पॉलिसी। यहाँ पर खुदा की मर्जी पूरी होगी, और जब खुदा की मर्जी पूरी होगी तो हम जानते हैं कि एक कुंवारी हामला हुई थी और उसने बेटा जाना, और वो ही बेटा हमें ये सिखा रहा है। वो कहता है जो बाप करता है वो मैं करता हूं, करके दिखाता हूं। वो देखता था और करता था, और हम सुनते हैं और नहीं अमल करते। हम करने की कोशिश नहीं करते, अमल नहीं करते। ये जो है ना पाकरू का सब्जेक्ट जो मजमून है, जब शुरू किया गया ना अहद अतीक से लेकर अहद जदीद तक, अहद अतीक में ये 90 बार पाकरू का लफ्ज इस्तेमाल किया, और अहद जदीद में 260 दफा। अगर इनको दोनों को मिलाए तो 350 बन जाते। और इसीलिए तो पाक रूह के वसीला से बताया गया है कि आपने सब गुनाह कर लो लेकिन पाक रूह के खिलाफ नहीं बात ना करो। जो वो सिखाए समझो। अब यहाँ पर 8वीं आयत पढ़े, अमाल की 8वीं पहले बाब की 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। अब ये क्या है, लेकिन जब तुम क्या हो, रूहुल कुद्स तुम पर क्या होगा, नाज़िल होगा। आगे कुव्वत पाओगे। कुव्वत का मतलब क्या है, ताकत बरकत, कुव्वत पाओगे। और इससे पहले ये लिखा था कि तुम यरूशलेम से बाहर न जाओ। चौथी आयत पढ़े जरा पहले बात। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। आगे 5वीं पढ़े, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। आमीन। थोड़े दिनों के बाद क्या करोगे, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अब ये क्यों ऑर्डर किया गया, हुक्म दिया। जहां पर हुक्म है खुदा यीशु मसीह का,
40 दिन उनको दिखाई देने के बाद भी हुक्म देते हैं कि तुम यहाँ पर ठहरे रहना। ਅਸੀਂ किस्म कह गया ठहरे रहो, वो कहता ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। सही गल जी, पक्की गल है। जज्बाई हुई चीज़ां ने जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जो आप बीती होती है ना वो भी बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हैं हम खरीदे नहीं है, हम गुलाम नहीं है। ਉਹ ਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਸਾ ਡੋਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਯਿਸੂ से कहा गया था क्या तू मशहूर नहीं होना चाहता है? क्या तू मशहूर होना नहीं चाहता? तू ईद में नहीं जाएगा? उसने कहा भी मेरा वक्त नहीं है। आपके भी बड़े बड़े कुर्सद होंगे, आपके भी बड़े बड़े जो है ना सेमिनार होंगे, आप भी कमेंशने करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन हुक्म माने, फिर ही बाप के प्यारे होंगे और फिर आपको कुव्वत का लिबास, यहां पर लिखा हुआ है कुव्वत का लिबास मिलेगा। आप जानते हैं कि जिसको पावर मिलती है ना उसको एक लिबास दिया जाता है। मिलिट्री हो, पुलिस हो और या कोई और इदारा हो, अगर कोई मिलिट्री का अफसर यहाँ पर आकर अपना यूनिफॉर्म पहन के बाहर खड़ा हो जाए ना, हम सब उसके सामने कांपते हैं। अगर पुलिस वाला आ जाएगा तो हम कांपते हैं, क्योंकि उसकी वर्दी अख्तियार वाली है। यहाँ पर आपको हुक्म मानेंगे तो आपको भी कुव्वत का लिबास मिलेगा। इसलिए तो कहता है हुक्म मानो, 100 लाला ना कम करो, मोटे मोटे ताजे ताजे है। मैं सोचा कि खुदा दे नां नू जलाल दांगे, वो नहीं काम करना। यहाँ पर हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब हम जानते हैं कि हुक्म में बरकत है और जब हुक्म मिला है ठहरे रहो, और जब हुक्म के बाद हमें वो उस वक्त कहा था कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, कहा यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। 8वीं आयत में क्या है? जब आपको कुव्वत का लिबास, आपको यूनिफॉर्म मिल गया है, आपको अथॉरिटी मिल गई है, आपको पावर मिल गई है, आपको बरकत मिल गई है, आपको पाकरू मिल गया है, अब आप दुनिया की इंतहा तक जाकर यीशु के नाम की गवाही दोगे। दोगे बस, मुझे लग रहा है ये आप सुस्ते गालियां में जाओ क्या है, हाथ और सुस्त उठे। अब ये पुरानियों की किताब में लिखा हुआ है, पुरानी की खत असली हो रह गए ना ते कोई बरकत नहीं आ सकेंगे। इसलिए कहते हैं रूह और दुल्हन कहते हैं आ, और यीशु कहता है कि और मुझसे मुफ्त ले ले आप। इसलिए तो उस वो सामरी औरत से कहता है अगर तू जानती तो मुझसे मांग, जो पानी तू यहाँ बढ़ने आती है, अगर तू जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तू अब तक कभी हालेलुया। लेकिन जब उसने इस बात पर यकीन किया तो बात की हुई कही, उसने सच कहा, उसके सामने झूठ नहीं बोला। यीशु ने क्या कहा था उसको, जब अपने शोहर को लेकर, वो क्या कहती है, मैं बेशोहर, उसने सच बताया। यीशु ने क्या, तूने सच कहा, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला था, है वो तरफदारी वाला नहीं। वो यीशु ने मुंह ते कहती नहीं मैं ते नहीं जाननी आ, उन्हें झूठ बोलिया, मैं बेशोहर हूं। उन्हें क्या, लेकिन जब उसने कहा कि यहाँ से हमारे बाप यकूब ने पानी भरा पिया, अपने मवेशियों को भी दिया, और ये कोई वाकई कोई नबी है, कोई बड़ा आदमी है जिसने मेरे माजी की बातें बताई, फ्यूचर की तो अभी उसने देख ली थी, माजी जो भूला है, जिसमें मैंने गुनाह किए, गलतियां की, तरफदारियां की, दोगलेपन किए, ओदे क्रूसटते ओदे नाल मैं तेरा ही हाँ, मैनू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ नहीं, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਾ। हम कहते हैं मैं भी था ऐसा, अभी भी था, लेकिन जब प्रभु ने बताया नहीं, बरकत देने वाला एक है,
वो बाप है, बेटा है, पाक रूह, तीनों एक ही है। वो ही बरकत दे सकते हैं। जब बरकत मिलेगी, अब भी 120 की जमात में जब कहा गया दूसरे बाप में, जब बरकत मिली 120 की जमात में, पतरस खड़ा हो गया। हालेलुया। जब पतरस खड़ा हो गया दूसरे बाप में, उसकी 12 से आप पढ़े। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशे में है। हालेलुया। ये तो क्या है? ताजा मै के नशे में है। जब आप भी खुदा की परस्तिश, खुदा की इबादत, खुदा के साथ एक जान, एक रूह, एक बदन, एक मुस्तकबिल होकर चलेंगे, तो आपको भी लोग यही कहेंगे, ओ यार ठठराया गया ये, नशे करता ये। आज नशे पता किसके हैं? नशे करते हैं लोग, करते हैं, शराब पीते हैं। नशा जिसका किया जाता है ना, हम उसी के गुलाम होते हैं। जब आप शराब पी लेना, मैंने कभी पी तो नहीं है, लेकिन जब पी ले, जो भी पी लेता है ना, वो जिधर जिधर जो वो सिखाती है ना, कुछ लोग इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हैं, कुछ लोग ऐसे ओवर हो जाते हैं, क्योंकि वो शराब के कंट्रोल में आ गए हैं, वो उसके नशे में है। अब यहाँ पर ये भी सबकी फरीसी, उन्होंने देखा इतने मुल्क आए हुए हैं, अपनी अपनी बोली में खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन रहे हैं। आज कुछ अजीब है। ये वाकई सुबह सवेरे एक 10 दिन तक जमा थे एक घर में, एक जगह पर, ये लाजमी 10 दिन तक नशे ही करते हैं, शराबा ही पीते होंगे, पता नहीं की करते होंगे। जो हम लोग है ना, रॉन्ग सोचने वाले, उल्टा सोचते हैं, उल्टा देखते हैं और उल्टा कहते हैं। यहां पर क्या कहता है? ये ताजा मैं के नशा में है। शराब ही है ना, मैं ताजा मैं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਕੂਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਫਾਜ਼, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਬਾਤ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ लिया कर हमारी तारीफ कर सही पन तो नहीं, लेकिन आप सही पन में नशा करें तो खुदा पाक रूह का नशा करें जो आपको बरकत दे सकता है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 22-23 आयत जरा पढ़े, खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 22-23 आयत में लिखा हुआ तुम है, जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हाँ, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक़्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अब कि देखें बाप यहाँ पर अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। 23वीं आयत में जरा रुक कर पढ़े, मगर वो वो वक़्त आता गया है, कौन सा वक्त आ गया है? वो वक्त आता है, अब वक्त आ गया है। अब इसकी आपको मैं गवाही दूंगा, वक्त आ गया है। अभी जाओगे दादी हो, बल्कि अब ही है। बाबू का चैप्टर बहुत लंबा है, इसको कोई क्लोज नहीं कर सकता। पास्टर साहब ने भी कंटिन्यू रखा है, मैंने भी वहां उनके आगे से मैं चला, मैं उनको नीचा कर दिखाने के लिए नहीं ये चैप्टर शुरू किया, बल्कि हम समझने के लिए ये चैप्टर आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर पढ़े क्या? मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। अब ही है, यकीन रखो, आप ईमान रखें, यकीन रखें, भरोसा रखें। अब वक्त आपके ऊपर आने वाला है, आपको पाक रूह मिलने वाला है। अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश, सच्चे परस्तार, बाप की प्रस्तिश, कौन से परस्तार? सच्चे परस्तार, सच्चे किनको कहते हैं? ते सुच्चे, सच्चे थे सुच्चे, जो रूह और चुने सच्चाई से हुए, करते हैं। अलग किए हुए, निकाले हुए, खुदा के साथ मिले हुए, ये है सच्चे परस्तार। क्या करते हैं? रूह और सच्चाई से करेंगे, हालेलुया। जो बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। जो बाप की प्रस्तिश, अपनी नहीं, खुदा यीशु मसीह जानता, बाप की वो कहता है जिसने मुझे बेचा है वो मुझसे बड़ा, बड़ा है। मैं उसकी इज्जत चाहता हूँ। जो उसकी इज्जत चाहता है वो मेरी भी इज्जत करेगा।
जो मैं भेजूंगा बाद में उसकी भी इज्जत करेगा। क्या है? बाप की परस्तिश और रोज सच्चाई कैसे करेंगे? क्योंकि बाप, अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। हालेलुया। खुदा क्या है? रूह है, वो उपदेश वाली बात। खुदा क्या है? रूह है, यहाँ पर यीशु आके बता रहा है खुदा क्या है? रूह है। जुम्बश किसके ऊपर कर रही हुई? पानी की सतह पर यहाँ पर सबूत दे दिया, खुदा रूह है। आज वो आपके अंदर आएगा, आपके ख्यालों को, आपकी बातों को, आपकी सोच को आपको इक्वल करने के लिए आएगा, आपको दोगलेपन से बाहर निकालने के लिए आएगा, आपको बरकत देने के लिए आएगा। जब आप बरकत पाएंगे तो खुश रहेंगे, शादाब रहेंगे, आबाद रहेंगे और हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जिला लग रहा है खुदा का। जब हम शादाब होते हैं तो क्या होते हैं? किसको इज्जत जिलाल देंगे? जिसने शादाब किया है। इसलिए कहते हैं कि जहां पर उसकी खून की बूंदे, जब वो गतसमनी बाग में था, खून की बूंदें गिर रही थी जमीन पर और वो जमीन शादाब हो गई। हम तो उसकी बनाई हुई खेती है, हम उसको फल देना चाहते हैं, वो हमसे फल चाहता है क्योंकि खुदा रूह है और आपके अंदर रूह का फल पैदा करेगा। उस दिन गलतियों के बाप में आपने पढ़ा 4 बाप 22 वहां पर रूह का फल लिखा हुआ, मोहब्बत जो हमारे अंदर ठंडी पड़ी हुई बिल्कुल ही खत्म हो रही है, क्योंकि खीर वक्त में खून सफेद हो जाएंगे, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, आपके घर के लोग ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपको बुझाना चाहेंगे, आपके चिराग को बुझा देंगे, आपका दिया कभी भी जलने नहीं देंगे, आपके अपने ही हो, बुझाने नहीं। इसलिए तो वो कहता है जितने तूने मुझे दिए मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी ना खोए, लेकिन ये सब पाक नहीं, एक इसमें गिरदार था। इसलिए तो वो ये कहता है कोई बाहरों नहीं अंदरों ही मिले, अंदर से ही। और जब हमें बाथरूम का मस्सा मिलेगा ना तो पतरस क्या है? अब दिलेर हो गया है, जेड़ा बोझ दिल की, जेड़े डर गए हन, जेड़े अपने कम्मा काजां फिर गए, फिर उथे मागिर मछेरे बनकर मछलियां पकड़ने चले गए। तो क्या हो गया? वहां पर वो बुजदिली आ गई ना। अब जब कुवत का यूनिफॉर्म मिल जाता है ना बच्चे को, बच्चा भी जब स्कूल का यूनिफॉर्म पा के जाना ना, दिलेरी ना जाना, मैथ उते दाखिल हो गया ते पुलिस वाला भी जदों आ जाता ना, तुम्हारे को 10 मंगे तो भाई 5 मंगे देने पैंगे। अब ये पाक रू फ्री में है, इसकी वैल्यू नहीं मिलती। आप चाहें आपको मुफ्त मिला है, मुफ्त देना है। यहाँ पर पाक रू कुव्वत का लिबास आपको मिलेगा। अब ये जो बुज़दिल था, जो इनकार भी करता है, जो पीछे भी हटता है, जो अपने काम को चला भी जाता है, अब ये 120 की जमात में खड़े हो जाता है। क्या हो जाता है? खड़े हो जाता है। 14वीं आयत में क्या कहता है? लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। क्या हो गया? खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ए यहूदियों, ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान क्या करो? लगाकर मेरी बातें सुनो। अब क्या कहता है? उनको मुखातब करता है अपनी तरफ। आज कलीसिया को मैं मुखातब करना चाहता हूं, चर्च को, कि कान लगा लो, अपने तमाम तर सोचों को तर्क कर दो। अब कान लगा लो। और 15वीं आयत पढ़े कि जैसे तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पहर ही दिन पहला यानी 8-9 का टाइम होना, हो सकता 5 का होए, लेकिन मैं इस बार के लोग जड़े सुते भी लेट उठते ना, 7-8 बजे तक 9 बजे तक उठी पे ना, पहर ही दिन चढ़ा। और क्या हो गया उसके बाद? बल्कि ये वो कि जैसे तुम समझते हो कि नशा में नहीं, नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो क्या है? पहर ही दिन चढ़ा है। आगे 16वीं आयत में क्या कहता है? बल अब वो वादा पूरा हुआ है।
बल्कि ये वो बात जो योएल नबी की मार्फत कही गई है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि वो खुदा बात फरमाता पूरी है। हुई। अब देखें तरफदारियां फिर भी खुदा नहीं रखना। पुरानी यादनामे में भी योएल नबी पुरानी यादनामे का किस्सा है। यहाँ पर खुदा पतरस उसको बताना चाहता है। क्या कहता है? खुदावन फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, कि आखिरी दिनों में क्या होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। आप 18वीं आयत भी पढ़े। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। आज जब पाकरू नाज़िल हुआ, ये उसने बता दिया, गलत नहीं है। वो यीशु है जिन्हें हर कुव्वत ताकत देती है, दिलेरी देती है। मैं बुज़दिल था, अब मैं दिलेर हो गया। गवाही दे रहा हूं। मैं दिलेर हो गया। सुनो, कान लगाओ, मेरी तरफ मुतवज्जी हो जाओ। अगर मैनू मारना है तो मारो। मेरा उस्ताद सीधी स्लीप पे चढ़ा तो मैं उल्टी पे चढ़ा था। सही है, सही। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं करता, वो कहता है आओ, नहीं हाँ वो पास्टर चंगा लग रहा, चर्च जाना है। उन्हें मैनू बरकत दी है, मैं ओदी हजूरी ते जावांगा। और जिन्हें बरकत दी उन्हें उसी भूल गया है। ये गलत नहीं है। कलाम मेरे हाथ में है और ये मैं क्लियर और साफ होता। पास्टर नहीं बरकत देगा, मैं किसी को बरकत नहीं दे सकता, मैं किसी को बदल नहीं सकता। कलाम है बदल सकता, कलाम बरकत दे सकता है। यीशु आपके साथ आ सकता है और यीशु का वादा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। अगर उससे पहले पढ़े ना, उससे पहले वाली आयतों में लिखा है कि मैं जाऊंगा बाप के पास, दूसरा मददगार भेजूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद। हालेलुया। जब हम दिलेर होते हैं और खुदा के नाम की गवाही देते हैं, 19वीं आयत में क्या लिखा है? और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानात यानी खून और आग और धुआं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तरक और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इससे के खुदावन का अजीम और जलील दिन आए और यूं होगा। क्या होगा? और यूं होगा जो कोई खुदावन का नाम लेगा। क्या होगा? खुदावन का नाम। जो कोई छोटा है बड़ा है, जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आप निजात याफ्ता है, आपको निजात मिली है, आपको बरकत मिली है, आपको रहाई मिली है, आपको मुखलसी मिली है, आपको तसल्ली मिली है, आपको निजात अभी तक यहाँ तक मिली है। पतरस कहता अभी तक निजात मिली है, अभी पाकरू आपको मिलना है। पाकरू का बपतिस्मा आपको अभी होना है। हम निजात याफ्ता है जब आप खुदा के साथ प्योर हो जाएंगे, दोगलेपन को छोड़ेंगे, तरफदारियों को छोड़ेंगे, अपने खुदा से प्योर और खालिस तरीके के साथ चलेंगे, तो खुदा का पाकरू जो पानी की सतह पर जुम्बश करता था वो आपके अंदर है। आप दलेर हो जाएंगे, आप चुने हुए उसके लोग और उसके चाहने वाले। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत। आमीन।